गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो अल्केन्स स्टार्ट की थी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने स्टार्ट की थी। फिज़िकल कंप्लीट करने के बाद वी हैव जस्ट स्टार्टेड द केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, these shows 4 types of reactions: SN reactions, elimination reaction, 4 types of reactions: elimination reactions, reduction reactions, and reaction with metals. These 4 types of reactions are shown by haloalkanes. 4 types of reactions. So out of these 4 types of reactions, first of all we will take SN reaction. We will start with SN reactions. SN means nucleophilic substitution reactions. SN reaction means nucleophilic substitution reactions. Haloalkanes, in which carbon halogen bond is polar bond due to partial negative charge on the halogen and partial positive charge on the carbon. इसमें आपके हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल मीन्स which have lone pair of electron, which can donate electron pair, or which is attracted towards positive charge, can attack on the carbon and will substitute the halide ion. So it will results in nucleophilic substitution reaction. अगर हम एक सिंपल रिएक्शन दिखाना चाहें तो वो सिंपल रिएक्शन हमारी इस तरह से होगी: RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, it will produce RNU. NU means nucleophile and X negative will be out. So in this way it is nucleophilic substitution reaction where one nucleophile substitute the other nucleophile. Now there are two different ways for SN reactions. There are two different ways for a SN reaction to take place. The first is SN1 and second is SN2. SN1 means unimolecular nucleophilic substitution reaction, whereas SN2 is bimolecular nucleophilic substitution reaction. Let us take one by one each reactions. First of all we take SN1. SN1 is, as I have already explained, it is unimolecular reactions, nucleophilic substitution reactions, which takes place in two steps. Take place in 2 steps. The first step is formation of carbocation or release of halide ion. Second step, attack of nucleophile on the carbocation, RNU. So पहले स्टेप में हैलाइड रिमूव होता है, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, एंड आफ्टर दैट न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द हैलाइड आयन. इट अकर्स इन 2 स्टेप्स. ध्यान रखना, रिएक्शन का नाम है
SN1 but it occurs in 2 steps. तो why it is 1 यूनिमोलिकुलर क्यों बोला गया है इसको? उसका रीज़न क्या है? दिस इज़ योर स्लो स्टेप एंड सेकेंड स्टेप इज़ फास्ट, सेकेंड स्टेप इज़ फास्ट स्टेप। तो अगर हम इसकी काइनेटिक्स स्टडी करते हैं तो आपको केमिकल काइनेटिक्स 4th चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप इज़ ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और अगर हम रेट ला देखें तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ RX। स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration of the RX raised to the power 1. So order of reaction is 1, sum of the power in rate law। ऑर्डर ही हमने 4th चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में किया है। तो इसमें आपका ऑर्डर 1 आता है एंड दैट इज वाई इट इज SN1। स्टेप से कोई मतलब नहीं है, 2 स्टेप हैं, नाम SN1 है बट इट एग्जिस्ट या इट अकर्स इन 2 स्टेप्स। So first step is yes प्रिपरेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, ये कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हुआ बाय द रिमूवल ऑफ हैलाइडाइन एंड इन द सेकंड स्टेप कार्बोकैटायन इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल टू प्रोड्यूस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। नाउ डिपेंडिंग अपॉन the nature of alkyl group, what will be the reactivity of alkyl halide? Nature of alkyl group means it may be methyl halide या methyl chloride, it may be primary CH3 CH2Cl primary halide, it may be secondary CH3CH CH3Cl secondary halide, or it may be tertiary halide. So which will have higher reactivity? इन तीनों में हायर रिएक्टिविटी किसकी होगी? तो 1 by 1 अगर हम जो स्टेप्स ले हैं इनके स्टेप्स लेकर चलें। फर्स्ट इज आवर CH3Cl। द फर्स्ट स्टेप विल बी CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, मिथाइल कार्बोकैटायन विल प्रोड्यूस। पहला स्टेप। अगर हम लेते हैं CH3 CH2Cl, द फर्स्ट स्टेप विल बी CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस Cl, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा स्लो स्टेप है वही होगा। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा? अगर हम सेकेंडरी हैलाइड लेते हैं तो जो उसका फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो होगा CH3H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। जबकि टर्सरी में जो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा वो टर्सरी कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा प्लस Cl नेगेटिव। ये है जी आपके मिथाइल विल प्रोड्यूस मिथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल विल प्रोड्यूस प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी हैलाइड विल प्रोड्यूस सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड टर्सरी हैलाइड विल प्रोड्यूस टर्सरी कार्बोकैटायन। तो कौन सा स्टेप इनमें फास्ट होगा उसी की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, और इनमें कौन सा स्टेप फास्ट होगा वो हम डिटरमाइन करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर से। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर जैसे कि हमने 11th में किया था, मिथाइल कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल देन टर्सरी। मतलब टर्सरी कार्बोकैटायन इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे फास्ट प्रोड्यूस होगा, और टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे फास्ट प्रोड्यूस होगा तो इसकी रिएक्टिविटी टर्सरी हैलाइड की रिएक्टिविटी भी सबसे फास्ट होगी। जबकि मिथाइल कार्बोकैटायन जो है सबसे स्लो सबसे लेस स्टेबल है,
तो सबसे कम प्रोड्यूस होगा, तो मिथाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी भी सबसे कम होगी। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम इसमें देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर विल बी फॉर SN1 के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो भी इनकी स्टेबिलिटी पर ही डिपेंड करेगा। SN1 के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा इट विल बी टर्शरी हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, सेकेंडरी की रिएक्टिविटी सबसे उससे कम, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी में सबसे कम होगी क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन सबसे लेस्ट स्टेबल है। SN1 प्रोसीड थ्रू कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, सो इट्स रिएक्टिविटी विल बी हाईएस्ट। तो इसमें आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आपके बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनता है तो उसकी रिएक्टिविटी और भी ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पर आपकी रेजोनेंस आती है। जैसे कि हम एग्जांपल लें, देखिए ज़रा, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि विच इज़ मोर, या अरेंज दैम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1, 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 मिथाइल, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। अरेंज दैम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। SN1 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसमें किसकी होगी? तो अगर हम देखें आपका, दिस इज़ योर टर्शरी हैलाइड, दिस इज़ प्राइमरी हैलाइड, दिस इज़ सेकेंडरी हैलाइड एंड दिस इज़ अगेन प्राइमरी हैलाइड। Secondary because halogen is attached with secondary carbon. This carbon is attached with 2 carbon atoms, so it is secondary carbon. Halogen secondary carbon से अटैच है, so it is secondary. यहाँ आपका halogen इस कार्बन से अटैच है और ये itself attached with 3 carbon atoms, so it is tertiary tertiary halide. So reactivity order जैसा कि हमने अभी पीछे क्या था, रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारा टर्शरी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो जो हमारा टर्शरी हैलाइड है इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर हम इसको लिखें, CH3 थ्राइस C, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद सेकेंडरी का नंबर आएगा, सेकेंडरी है हमारी CH3, CH2, CHCl, CH3। इसके बाद प्राइमरी का नंबर आएगा, देयर आर 2 प्राइमरी हैलाइड्स भी है, ये दोनों ही प्राइमरी हैं, दिस वन एज वेल एज दिस वन, बोथ आर प्राइमरी बट दिस इज ब्रांच्ड। अब ब्रांच्ड है तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी में कम होगी आपकी, सॉरी इसके बराबर में सेकेंड ये टर्सरी है तो यहाँ स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी आपकी, तो इसकी रिएक्टिविटी कंपेरेटिवली ज़्यादा रहेगी। तो इसमें हमारा आ जाएगा थोड़ा सा गड़बड़ है कहीं, तो इसके बाद जो आपका नंबर आएगा वो आएगा CH3, CH, CH3, CH2Cl, और सबसे लिस्ट होगी इसमें आपकी प्राइमरी जो कि बिल्कुल स्ट्रेट चेंज है, सबसे कम रिएक्टिविटी SN1 में इसकी होगी। इसी तरह से बेंजाइल अगर हो, बेंजाइल, सपोज ये क्वेश्चन है कि अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन SN1,
CH C6H5CHCl, या फिर C ट्राइफिनाइल। इन तीनों में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो इसमें हम आपको एक बात बता दें कि पहली बात तो जो हमारा बेंजाइल है उसमें रेजोनेंस थोड़ी सी, रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबिलिटी उसके अंदर एक्स्ट्रा होगी। बेंजाइल, बेंजाइल इट विल प्रोड्यूस CH2 कार्बोकैटाइन। बेंजाइल कार्बोकैटाइन प्रोड्यूस करेगा जिसमें रेजोनेंस होगी, हमारा ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाता है एंड इट विल शो रेजोनेंस, रेजोनेंस लाइक CH2, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आने की वजह से इट विल बी स्टेबल। तो स्टेबिलिटी बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन की वजह से इंक्रीज हो जाती है। एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव चार्ज विल बी अगेन ऑन द कार्बन एटम। तो ड्यू टू दिस रेजोनेंस स्टेबिलिटी इंक्रीज इन बेंजाइल। तो बेंजाइल में स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ एक फिनाइल रिंग है, देयर इज वन फिनाइल रिंग, सो स्टेबिलिटी विल इंक्रीज, बट इन सेकंड केस देयर आर टू फिनाइल रिंग्स, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन दिस रिंग एज वेल एज ऑन दिस रिंग। तो यहाँ डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा होगी। इन केस ऑफ दिस कंपाउंड ट्राइफिनाइल देयर आर 3 फिनाइल रिंग्स, सो डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन द 3 बेंजीन रिंग्स, सो इट विल बी मोस्ट स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका होगा तो सेम केस हमारा SN1 में हो जाएगा। इसकी रिएक्टिविटी आपकी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद डाइफिनाइल की और उसके बाद बेंजाइल की। चलिए थर्ड नंबर पे तो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग SN1 रिएक्टिविटी। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़, टर्शरी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर प्राइमरी सेकेंडरी की, एंड देन प्राइमरी। बेंजाइल की और एलाइल की रिएक्टिविटी भी SN1 में ही होती है क्योंकि उन एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होते हैं। एलाइलिक कौन से होते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, दिस इज एलाइलिक हैलाइड। Halogen is present on the next carbon atom to the double bonded carbon atoms. डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन अटैच है, एलाइलिक होगा। इट विल प्रोड्यूस एलाइल कार्बोकैटायन एंड दिस एलाइल कार्बोकैटायन विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसमें रेजोनेंस होती है CH2, सॉरी आपका CH होगा यहाँ पर, काम नहीं कर रहा है CH। पेन कुछ काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और अब आपका यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से हमारा एलाइल और बेंजाइल रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होते हैं। तो ये भी आपके SN1 रिएक्शन में प्रोसीड करते हैं और इनकी रिएक्टिविटी आपकी ज़्यादा होती है इन SN1। तो ये तो हमारी होगी SN1 तो ये हमारी SN1 मैकेनिज्म हुआ इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ, फर्स्ट इज कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, सेकेंड स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकैटायन,
So SN1 occurs in two step. Stability या reactivity order depends on the stability of कार्बोकेटाइन. जिसके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी उस केस में ज़्यादा होगी. तो यहाँ पर आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो इसका टर्शरी की सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी की और भी कम होगी. और इन द सेम वे अगर आपके बेंजाइलिक या एलाइलिक हैं तो वहाँ पर आपकी रेजोनेंस की वजह से, बेंजाइलिक में रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है. सो रिएक्टिविटी ऑर्डर उसमें भी ज़्यादा होगा. जितनी ज़्यादा बेंजाइल या आपकी फिनाइल ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी. अब इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट SN2 मैकेनिज्म. सेकेंड वे हमने दो तरह से इसमें आपको बताया था कि इट अकर्स इन टू स्टेप्स, टू डिफरेंट वेज. वन इज SN1 एंड अदर इज SN2. अब नेक्स्ट लेते हैं SN2 मैकेनिज्म. SN2 occurs in single step. It occurs in single step. SN1 occurs in two step and SN2 occurs in single step. एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी. इसमें जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली RX एल्काइल ग्रुप पर अटैक करता है. इट अटैक्स डायरेक्टली ऑन द एल्काइल ग्रुप. कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो डायरेक्टली उसे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से देयर विल बी एन इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट जिसमें न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट अटैचिंग विद अल्काइल ग्रुप एंड हैलाइड आयन स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ द ग्रुप, अल्काइल ग्रुप. तो न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है और साथ के साथ अल्काइल ग्रुप और हैलोजन के बीच में बॉन्ड डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा. ये ट्रांजिशन स्टेट आती है, बोलते हैं इसको ट्रांजिशन स्टेट. और धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल विल गेट अटैच विद अल्काइल ग्रुप एंड हैलाइड आयन विल बी रिमूव्ड. तो ये आपकी सिंगल स्टेप की रिएक्शन है SN2 मैकेनिज्म में, जिसमें न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा. न्यूक्लियोफाइल अल्काइल ग्रुप से अटैच होता चला जाएगा और हैलोजन जो है वो रिमूव होता चला जाएगा. और धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल गेट अटैच विद अल्काइल ग्रुप वेयर एज हैलाइड आयन इज रिमूव्ड. सिंगल स्टेप रिएक्शन. दिस इज आवर SN2 मैकेनिज्म या SN2 वे ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब इस SN2 में हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर, व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर. यहाँ पर ये एक बात का और ध्यान रखना, क्योंकि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है. अगर इसके काइनेटिक्स को हम स्टडी करें, अगर इसके हम काइनेटिक्स को स्टडी करें हम, तो रिएक्शन इन्वॉल्व्स द टू रिएक्टेंट्स, न्यूक्लियोफाइल एंड एल्काइल हैलाइड. एक ही स्टेप है, दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है. तो जो रेट है, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड concentration of alkyl halide. So order of reaction will be 2. So it is SN2 या बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. इसलिए इसको बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहा जाता है, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2. नाउ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ SN2. स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हेयर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस. इसमें कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कार्बोकेटाइन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. यहाँ बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली कार्बन पे अटैक करता है. जब न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली कार्बन पे अटैक करेगा तो जितना इजी उसका कार्बन पे अटैक करना होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर उतना ही ज़्यादा होगा. अब देखिए किस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बन पे इजी होगा. पहले हम लेते हैं मिथाइल की. दिस इज आवर मिथाइल ग्रुप. कार्बन इज अटैच्ड विद 3
3 hydrogen atom and 1 halogen atom. Carbon is attached with 3 जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन और 1 हेलोजन से अटैच है. Now nucleophile wants to attack directly on this carbon atom. These 2 hydrogen atoms या 3 hydrogen atoms are of small size. लेकिन अगर यही आपका सेकेंडरी हेलाइड हो, सेकेंडरी हेलाइड में देयर विल बी 2 हाइड्रोजन एंड 1 मिथाइल आल्सो, 1 मिथाइल ग्रुप CH3 CH2Cl. Now this methyl group is of large size and here is a nucleophile which wants to attack on this carbon atom. Now this carbon secondary halide में जो कार्बन है वो 1 स्मॉल ग्रुप हाइड्रोजन, 2 स्मॉल ग्रुप हाइड्रोजन एंड 1 बल्कि ग्रुप मिथाइल से अटैच है. तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक करने के लिए स्पेस एज कम्पेयर टू मिथाइल काफ़ी कम है, जबकि यहाँ पर देयर वर 2 स्मॉल हाइड्रोजन एटम. अब अगर इसके बाद हम टर्सरी की सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी भी देखिए ज़रा. सेकेंडरी में आपके पास दिस इज द कार्बन अटैच विद CH3. इट इज़ अटैच्ड विद 2 कार्बन एटम. सेकेंडरी हैलाइड है सो इट इज़ अटैच्ड विद 2 कार्बन एटम, 1 हाइड्रोजन एंड 1 इज हेलोजन. तो न्यूक्लियोफाइल नाउ अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, जबकि ये कार्बन एटम आपके 2 बल्कि ग्रुप से अटैच है. अब देखिए इस न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक करने के लिए बहुत कम स्पेस है. इस स्पेस में से होकर इसको जाकर कार्बन पर अटैक करना है. अगर यही बात हम टर्शरी की करें सो दिस इज टर्शरी. कार्बन एटम इज अटैच विद 3 अदर कार्बन एटम. These are the 3 other carbon atom and this is halogen. This carbon is bulky group, this is also bulky group and this is also a bulky group. Now nucleophile, the attack of nucleophile becomes more difficult in this case. तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक टर्शरी के केस में है. दिस इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस. दिस डिफिकल्टी या दिस बल्की ग्रुप विच हिंडर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल on the carbon atom is called steric hindrance. This is called steric hindrance. This is called steric hindrance. Steric hindrance ये मान लीजिए जैसे आप रुकावट, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने में रुकावट पैदा करते हैं और न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही नहीं हो पाएगा तो आपकी SN2 रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी. अब देखिए रुकावट सबसे ज़्यादा किस में है. ये देखिए यहाँ न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है इन द केस ऑफ मिथाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज टू इजी बिकॉज बोथ द हाइड्रोजन ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम्स आर स्मॉल इन साइज. तो कार्बन पर अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल के पास काफ़ी स्पेस है. इन केस ऑफ सेकेंडरी देयर इज 1 बल्की ग्रुप, सो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बिकम्स स्लाइटली डिफ़िकल्ट. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल के लिए कार्बन पे अटैक करना. लेकिन अगर बात हम करें सेकेंडरी की, सेकेंडरी में न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा बिकॉज देयर आर 2 बल्की ग्रुप्स अटैच विद द कार्बन एटम. कार्बन एटम से 2 बल्की ग्रुप अटैच हैं तो न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. टर्शरी में देयर आर 3 लार्ज साइज groups are attached, so attack of nucleophile will become more difficult. अब और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो रिएक्टिविटी किस में सबसे कम होगी? टर्शरी में सबसे कम रिएक्टिविटी होगी. इसमें आपकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी. कारण क्या है? यहाँ अटैक डिफ़िकल्ट है तो जो इसमें रिएक्टिविटी हो रहेगा टर्शरी की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, सेकेंडरी, प्राइमरी और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसमें आपके मिथाइल हैलाइड में होगी क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है. मिथाइल हैज़ लिस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस जबकि टर्शरी हैव
हाईएस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस रुकावट टर्शरी में है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने में मुश्किल आएगी, सो रिएक्टिविटी SN2 में मुश्किल होगी। लेकिन मिथाइल में हिंड्रेंस सबसे कम है, रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो SN1 और SN2 दोनों की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स है। फिर से देख लीजिए, फॉर SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर्स आर, मिथाइल की रिएक्टिविटी सबसे कम, फिर प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। एंड इन केस ऑफ SN2 मिथाइल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी और टर्शरी की सबसे, दोनों में जो ऑर्डर है वो बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर होता है। तो इस पर आपको क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। आपको SN1 और SN2 दो, ये आपको कुछ एग्जांपल दे दिए या 3 या 4 कंपाउंड दे दिए, एंड देन यू आर आस्क्ड कि अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन SN1 या अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी। तो इस तरह से इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप क्या चाहते हैं आगे एग्जाम्पल ऑफ SN1 एंड SN2, वो हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।